Dear students, today I shall be discussing on pathogenesis or disease development and what are the factors which are responsible for influencing the pathogenesis or disease development. So before going to understand those factors, there are some basic facts which we need to understand और जिसमें ये some of the terminology which we should understand like parasitism and pathogenicity. What is parasitism? And we had already discussed about all these terms, but let's again we should discuss in continuation with this chapter. So how we can define parasitism, which is related with those organisms which are basically the parasites, and they obtain their food material from living tissues or host plants, and they establish their relationship with the host, start drawing the nutrients from the host cell, as well as they start developing inside the host tissues, and in this way they affect the growth and development of the plant as well as the reproductive capabilities of the plant. Therefore, what happens in that development, due to these forms of the development, there is always reduction in the yield of the crop. So when we study about the relationship between parasite and host, that is known as parasitism. And of course, when we talk about the parasitism, then we must talk about the pathogenicity. तो पैथोजेनिसिटी जैसा कि पहले बता चुके कि पैथोजेनिसिटी क्या है कि ये किसी भी पैथोजन या पैरासाइट की कैपेबिलिटी है डिजीज उत्पन्न करने की या डिजीज काज करने की, जिसपे जो पैथोजन है वो न्यूट्रिएंट्स होस्ट से लेता है और जिसके कारण होस्ट जो है वो कमजोर होता है, उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रभावित होती है और एज ए रिजल्ट उसमें उसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, शूट्स का डेवलपमेंट है वो सभी रुकता है और some abnormalities we can also see as a result of the process of the pathogenesis, जिसमें कि हम डेथ ऑफ टिश्यूज देखते हैं जिसको हम नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज बोलते हैं, या जो सेल वॉल है उनमें डिस्कलरेशन, ओवर ग्रोथ, इस तरह की कई सारी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं. एंड ऑफ कोर्स पैथोजेनेसिस को भी समझना जरूरी है. वैसे भी हम होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने बताया था कि पैथोजेनेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अगेन वी कैन define the pathogenesis in 2 or 3 ways. जैसा इसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि pathogenesis जो है it's a chain of events, those events which are responsible for producing disease or producing symptoms. और ये जो symptoms हैं या जो disease का appearance है किसी भी पौधे में, वो that is very closely associated or linked with the different chain of events. और किसी भी पौधे में जो symptoms appear होते हैं, उस appear होने के पहले there are several events or stages which pathogen passes, and then pathogen is able to cause this abnormality or symptoms, and all these process are known as pathogenesis. तो pathogenesis को हम define कर सकते हैं और हमें ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी abnormalities हैं जो कि पौधों में as a result of this disease development
जो abnormalities हैं, जो rather these abnormalities are taken place inside the host, which may be in the form of biochemical alteration or physiological alteration of the host plant due to uh, secretion of different forms of the substances by the pathogen, or sometimes as a result of the interaction between host and pathogen. जैसे enzymes हैं, toxins हैं, these are the substances which are formed as a result of host pathogen interaction. तो ये जो बायोकेमिकल जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो किसी भी तरह से होस्ट को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे समटाइम्स दे इंक्रीज द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट टिश्यूज, और समटाइम्स they cause the disintegration or death of the tissues, or sometimes what we see that the drying of the entire plant, या पूरा जो पौधा है वो सूख जाता है, या फिर कभी कभी हमें जो ओवर ग्रोथ है वो दिखाई देती है, एंड दैट इज द एबनॉर्मल सेल डिफरेंशिएशन। और समटाइम्स जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ऐसे कई तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं, एबनॉर्मलिटीज हैं जो होस्ट में डेवलप होते हैं, और जो पैथोजन डिजीज काज करते हैं, जैसे रस्ट डिजीज काज करते हैं, या पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, या वायरसेस हैं, या नेमेटोड्स हैं, इस तरह के ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो केवल लिविंग होस्ट में ही एक्टिव रहते हैं। तो जैसे ही लिविंग होस्ट उनको नहीं मिलता तो दे बिकम इनएक्टिव और दे बिकम किल्ड। और ये जो पैथोजेंस हैं जो बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर हमें पैथोजेनेसिस को समझना है तो देन वी मस्ट नो that what is the nature of these plant pathogens, whether they are the obligate parasite or where they are the facultative saprophytes or facultative parasites। इसी तरह से अगर हम parasites को ले तो बहुत सारे ऐसे parasites हैं जिनकी मेजर पार्ट, जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो लिविंग होस्ट में कंप्लीट होती है, लेकिन जब होस्ट उनको नहीं मिलता या सम एडवर्स कंडीशन जब आती है, so what they do under adverse environment, they start living as a saprophyte। तो उस जो टर्म है उसको हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं। ऐसे सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो मेजॉरिटी में वो बेसिकली दे लिव एज ए पैरासाइट, बट एट सर्टेन कंडीशन दे बिकम सेप्रोफाइट। उनकी सेप्रोफिटिक ग्रोथ होती है, तो वो they utilize the dead organic matter and they grow either on the dead tissues or in the soil likewise। फिर इसी तरह से फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स और ऑब्लिक पैरासाइट, ये दोनों की विशेषता ये होती है कि ये दे डू नॉट किल होस्ट सेल जस्ट आफ्टर द इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है इनमें कि पहले ये स्टैब्लिश करते हैं अपना रिलेशनशिप, इसके बाद देन दे स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड देन दे ग्रो, एंड एज रिजल्ट ऑफ देयर ग्रोथ अल्टीमेटली द सेल डाइज और दे कॉज द अल्टीमेटली डेथ ऑफ द होस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी पैथोजेंस हैं जो कि पहले व्हाट दे डू, they secrete some forms of the toxins and they kill the host tissues and they starts growing। तो ये जो obligate parasites हैं, इनमें ये जो इनकी जो एक्टिविटी है वो होस्ट स्पीसीज से, और उसकी ससेप्टेबिलिटी किस तरह की है, फिर उसकी होस्ट की एज, उसमें जो काइंड ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे हमेशा देखा गया कि अगर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है तो वो उनमें ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, और अगर पेरेन्काइमेटस टिश्यूज ज्यादा होते हैं, सकुलेंट पार्ट होता है, तो उसमें जो ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो जो पैथोजेंस है वो दे ग्रो
maybe in the xylem tissues or phloem tissues, और मोस्टली जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो पैथोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें देयर आर 7 वेल डिफाइंड स्टेजेस, और which start with the survival or पेरिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन, सर्वाइवल, देन ट्रांसपोर्ट और डिस्पर्सल जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद देन द अटैक, जिसमें कि हमने पढ़ा अभी कि किस तरह से इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है, और किस तरह से वो प्री पेनिट्रेशन होता है, फिर पेनिट्रेट करते हैं। तो फर्दर ये जो पूरी स्थिति है, ये सब ये चेन्स ऑफ इवेंट्स हैं जो पैथोजेनेसिस में होते हैं, एंड फाइनली दे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप व्हिच इज नोन एज इन्फेक्शन, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग, एंड एज ए रिजल्ट they affect the physiology of the host plant, और उसमें symptoms भी आते हैं। तो और finally after their final growth and development, उसके बाद इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद they exit from the dead tissues, and either they ready to infect another new host, healthy host, or in the absence of host they undergo either to develop the dormant structures, उनमें कुछ इस तरह के dormant structures बनते हैं, और जिससे वो उनका जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यू रहता है। और डिजीज साइकिल की जितनी भी स्टेजेस हैं और पैथोजेनेसिस की जितने भी स्टेजेस हैं, उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एंड दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, देन द सॉइल इन्वायरमेंट डज आल्सो मैटर, इस सॉइल का जो इन्वायरमेंट है वो भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जो होस्ट की कंडीशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, कल्चरल ऑपरेशंस हैं, फिजिकल केमिकल कंडीशंस है सॉइल की, ये सब they play a decisive role and affecting the pathogenesis process. पैथोजेनेसिस प्रोसेस को अगर हमें समझना है तो हमें ये भी जानना जरूरी होगा, वैसे इसके बारे में भी हमने पहले हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन्फेक्शन जो होता है, जो वो कई सारे क्लासेस में उसको हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। टाइप ऑफ इन्फेक्शन मीन्स अगर कोई पैथोजन लगातार होस्ट को इन्फेक्ट करता हुआ और कंटिन्यूअसली एक्टिव फॉर्म में रहता है तो वो एक इन्फेक्शन की प्रोसेस है। दूसरी ऐसी होती है कि एक डिजीज डेवलपमेंट चलता रहता है, उसके बाद फिर जैसी ये क्रॉप खत्म होती है एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो उसकी जो साइकिल है वही रुक जाती है। And again, when the new crop or new flush of the crop is come out, then again pathogens they start causing infection। तो इस तरह की भी प्रोसेस होती है। तो उसके बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कई सारे इसके उसमें क्लासेस में। और जो इन्फेक्शन चेन है, इन्फेक्शन चेन को पहले डिफाइन करें तो it is a chain of events leading to the completion of pathogenesis. So there may be continuous infection chain where the pathogens or the pathogen continuously lives in an active form from growing from one host plant to another host plant. तो basically बहुत सारे ऐसे जो वायरसेस हैं which are truly obligate parasite, जो basically obligate parasite होते हैं, और इनमें जो इनके द्वारा जो भी डिजीज का डेवलपमेंट होता है या इनका जो पैरासिटिक रिलेशनशिप है दैट कम्स अंडर कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन। सो इनमें ये भी पहले हम बता चुके कि जब इनको मेन होस्ट नहीं मिलता तो उस होस्ट के बाद जो कोलेटरल होस्ट हैं, वीड होस्ट हैं, वाइल्ड होस्ट हैं,
या फिर कुछ ऐसे भी होस्ट अल्टरनेट होस्ट हैं जिसमें वो वायरस कंटिन्यूअसली वो अपने आप को लिविंग फॉर्म में रखते हैं और कंटिन्यूअसली वो इन्फेक्शन काज करते रहते हैं. So that is the continuous infection chain where most of the viruses, phytoplasma like organisms, or sometimes some of the fungi also come in that category. And then the another one is intermittent infection chain. Intermittent infection chain mostly उन सभी प्रकार के पैथोजेनिक प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है जिसमें ये क्षमता होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट दे रिमेन एक्टिव इन द डॉर्मेंट फॉर्म एंड दे वेट टिल द फेवरेबल कंडीशंस अराइव. तो इस तरह की जो चेन है जिसमें ब्रेक होता है वो इंटरमिटेंट इन्फेक्शन चेन कहलाती है. इसमें आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स these pathogens survive in the form of different forms of the dormant structures. They may be the spores, they may be the modification of their vegetative structures, there may be the sclerosia. कई तरह के dormant structures होते हैं. अलग अलग जो फंजाई हैं उनके अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया में कैप्सूल्स का जो फॉर्मेशन है that also a kind of protected covering which protects the bacterial cell from the high temperature condition. तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं. Then come to the homogeneous infection chain and heterogeneous infection chain. तो अगर कोई भी पैथोजन केवल एक जीनस या स्पीसीज के होस्ट प्लांट में वो सर्वाइव करता है तो और उसमें इन्फेक्शन काज करता है, then that is known as homogeneous infection chain. Or when many plant species are being infected by the pathogens or by the pathogen, then that process is known as heterogeneous infection chain. तो अब इसके बाद जो है ये बेसिक चीजें थी जो हमें समझना जरूरी था. Then finally we come to the final topic, which is the effect of environmental factors on disease development. और जितनी भी प्लांट डिजीजेज हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिजीजेस का देखा जाए, क्रॉप्स का देखा जाए, तो वी कैन क्लासिफाई द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और जियोग्राफिकल लोकेशंस. जैसे टेम्परेट जोन है या सब टेम्परेट जोन्स हैं या सब ट्रॉपिकल जोन्स हैं या ट्रॉपिकल जोन्स हैं या ड्राई एरिया है, ह्यूमिड या वेट एरिया है. तो इस तरह से जो पूरा जो ज्योग्राफी है थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसमें जो प्लांट्स जो उसमें ग्रो होते हैं, तो पैथोजेंस which have the similar requirement of the environmental conditions, they cause the infection and they cause the disease in the certain type of the environment or geographical area or geographical regions. तो mostly diseases जो हैं they require for their growth and development moderate temperature, wet and humid areas, or and another factors are also important, like the factors which are related with the nutrients, like the nitrogenous fertilizers, as well as some of the factors which are related with the soil, जैसे soil की pH है, soil का structure है, या फिर light है, intensity light की, लाइट की जो लेंथ है, डे लेंथ है वो, या फिर विंड की वेलोसिटी, ये सभी प्रकार के ये फैक्टर्स हैं जो डिजीज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर. तो सभी प्रकार के जो पैथोजेंस हैं, ईच पैथोजन हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये जो डिफरेंट प्रकार के जो पैथोजेंस हैं, मे बी
नेमेटोड्स में भी, फंजाई में भी, बैक्टीरिया में भी, वायरसेस, सबके अपने अलग अलग इनके टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। और जिसमें वो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग तरह का टेम्परेचर, फिर इनके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए अलग तरह का टेम्परेचर, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स है, स्पोर्स का जर्मिनेशन है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, जिसके लिए उनके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे उनकी ग्रोथ काफी विगरस ग्रोथ होती है। और अगर इफ देयर इज एनी फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से नीचे चला गया या ऑप्टिमम के ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन पे जो पैथोजेंस की ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। और जब पैथोजेंस की ग्रोथ प्रभावित होगी तो सर्टेनली जो डिजीज का डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होगा। तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये it has got impact on all events which are taken place during the process of pathogenesis, चाहे वो सर्वाइवल की बात हो, चाहे वो इसके बाद जो प्री पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन एक्टिविटी है, या इन्फेक्शन की बात हो, या फिर फर्दर पोस्ट में कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करें, सब में टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट है। और इवन बहुत सारे ऐसे देखा गया कि जो टेम्परेचर के हिसाब से ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि एक निश्चित ज्योग्राफिकल लोकेशन में आती हैं, जबकि दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में वही पर्टिकुलर डिजीज नजर नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन कोट द टू एग्जांपल्स हियर, particularly in Chhattisgarh also. In Chhattisgarh plain, hardly we observe the intensity and incidence of late blight of potato. But when we go to the northern hill of Chhattisgarh, जो सरगुजा संभाग है, उसमें अगर हम चले जाएं जहाँ पे आलू की खेती होती है, और वहाँ पे हम ये पाते हैं कि लेट ब्लाइट का इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होता है। और ये केवल इसलिए कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो हमें वहां दिखाई देता है। देयर इज ऑलवेज अ लो टेम्परेचर, देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर समटाइम्स अंडर फ्रीजिंग कंडीशन, सो दैट फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। लेकिन वही जो सेम पैथोजन है वो हमें नजर नहीं आता। ठीक उसके विपरीत अगर देखें तो अल्टरनेरिया जो है एक पैथोजन जो कि विच इज कॉमन इन छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट इज आल्सो कॉमन इन नॉर्दर्न हिल जोन एज वेल इट इज आल्सो कॉमन इन छत्तीसगढ़ प्लेटू। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दैट मैटर्स। अल्टरनेरिया के लिए अल्टरनेरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका जो रेंज है वो काफी मॉडरेट रेंज है, इसलिए वो दोनों जगह तीनों जगह आता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि व्हीट में हमने देखा कि वी नेवर सी द इंसिडेंस ऑफ कर्नाल बंट ऑफ व्हीट इन आवर एरिया, इन छत्तीसगढ़ एरिया वेयर द व्हीट क्रॉप इज ग्रोन। लेकिन वही कर्नाल बंट जो है इट इज वेरी कॉमन डिजीज in Haryana, Punjab and parts of North India। तो ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेचर का है जो कि वो डिजीज को की प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस को प्रभावित करता है। और सिमिलरली स्टोरेज टेम्परेचर में भी ये देखा गया, जहाँ पे नर्सरी स्टॉक्स हैं उसमें भी देखा गया कि जो स्टोरेज डिकेइंग है उसमें जो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है वो हमें दिखाई देता है। तो सीजनल और रीजनल जो ऑकरेंस है प्लांट डिजीज का वो इट इज फेवर्ड बाय द टेम्परेचर। लेट ब्लाइट का उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो, और इसी तरह का दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। It is more common in Chhattisgarh plain or in Chhattisgarh or eastern part rather than the northern area or central part of central India। तो Pseudomonas solanacearum जो सोलेनेसियस विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट है, वो यहाँ ज्यादा आती है।
क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल में ज्यादा, टेम्परेट में इसका इंसिडेंस ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेट ब्लाइट में अगर उसका हम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट देखें पैथोजन का, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो इट स्टार्ट्स विद द 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें सबसे ज्यादा आता है। तो सभी के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। स्क्लेशियम रॉल्साई का जो रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। डाउनी मिल्ड्यू का जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है इट इज आल्सो अराउंड 18 टू 22 और 23 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है दैट इन्फ्लुएंस द ऑल इवेंट्स ऑफ द पैथोजेनेसिस, चाहे वो पेनिट्रेशन हो, चाहे प्री पेनिट्रेशन हो, चाहे वो फर्दर इन्फेक्शन हो, चाहे कॉलोनाइजेशन हो। और ये भी देखा गया कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि द टाइम टेकन बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द डिजीज डेवलपमेंट, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी जो है वो टेम्परेचर अगर फेवरेबल है तो इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाता है, टेम्परेचर अगर अनफेवरेबल है तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, और भी कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जनरली पाउडरी मिल्ड्यूज के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली 28 to 30 डिग्री सेल्सियस रेंज इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पाउडरी मिल्ड्यू डेवलपमेंट। तो पाउडरी मिल्ड्यू का इंसिडेंस अगर हम सीजनल वाइज भी देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो विंटर सीजन में खासकर नवंबर से जनवरी तक का जो पीरियड है जिसमें टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, उस समय पाउडरी मिल्ड्यू का इंसिडेंस नहीं दिखाई देता। और इसमें इस स्लाइड से हम एक देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर के हिसाब से इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे इंक्यूबेशन पीरियड कम और ज्यादा होता है। डाउनी मिल्ड्यू का उदाहरण आप देख सकते हो इसमें कि अगर 5 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है अगर फेवरेबल टेम्परेचर है, और अगर फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है तो ये बढ़ के आगे 10 या 15 डेज का हो जाता है। विल टॉप कॉटन में 12 डेज का 27 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ अगर 16 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 58 डेज का हो जाता है। ब्लास्ट का भी हमने देखा, ब्लास्ट में भी जो लो टेम्परेचर है उसमें ब्लास्ट का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम हो जाता है, और हाई टेम्परेचर अगर होता है तो जो डिजीज है उसका डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो जो पैथोजेंस हैं इनका जो प्रेफरेंस है वो भी लो और हाई टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंस होता है। इसके बारे में भी अभी चर्चा कर चुके हैं कि लेट ब्लाइट है जो कोल्ड रीजन में ज्यादा आता है, जबकि कोलेटोट्राइकम जो कि एंथ्रेक्नोज डिजीज काज करता है वो मॉडरेट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ज्यादा आता है। और जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो उसमें डिजीज डेवलपमेंट भी रैपिड होगा, डिजीज डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जितनी भी एपिडेमिक डिजीज डेवलप होती हैं वो हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमेशा एपिडेमिक फॉर्म में डेवलप होती हैं, चाहे वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का एग्जांपल हो, चाहे वो रस्ट ऑफ हीट का एग्जांपल हो, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यू का एग्जांपल हो। ये सभी डिजीज एपिडेमिक फॉर्म में तभी आती हैं जब टेम्परेचर इनके हिसाब से फेवरेबल होता है। फॉर इंस्टेंस रस्ट ऑफ हीट at low temperature the infection cycle is about 22 days, जबकि 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 15 डेज में कंप्लीट होती है। और लेकिन अगर 23 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो जो रस्ट की लाइफ साइकिल है ब्लैक स्टेम रस्ट की इट इज कंप्लीटेड इन 5 to 6 डेज। तो ये जो डिफरेंस है इंक्यूबेशन पीरियड का वो हमें इस तरह से दिखाई देता है। फिर इसमें ये भी देखा गया कि जो
ये मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है पैथोजन के लिए, होस्ट के लिए, डिजीज के लिए। ये ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होता है मतलब जो टेम्परेचर में होस्ट का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा उसी टेम्परेचर में पैथोजेंस की भी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है और डिजीज का डेवलपमेंट भी होता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण जो सिम्टम्स हैं उनमें मास्किंग होती है। मतलब वो मास्किंग का मतलब होता है कि एक बार सिम्टम अपीयर होने के बाद फिर डिसअपीयर हो जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो मास्क का मतलब है कि वो कवर हो गया और जैसे ही फिर से फेवरेबल टेम्परेचर होगा तो फिर से वो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इट हैपेंस विद द मोस्ट ऑफ द वायरसेस एज वेल एज सम ऑफ द फंगल डिजीज। जैसे मैंगो में जो एंथ्रेक्नोज है उसमें ये देखा गया कि अर्ली स्टेज में एंथ्रेक्नोज नजर आता है मैंगो में, जो क्लिटोट्राइकम के कारण होता है। उसके बाद फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें मास्क हो जाते हैं सिम्टम्स। राइपनिंग के समय जैसे ही स्टोरेज में हम ले जाते हैं वो जो फिर से उसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर के बारे में हम बता सकते हैं। देन कम टू द मॉइस्चर। मॉइस्चर आल्सो इन्फ्लुएंस द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ the infectious plant diseases and which are being caused by several pathogens, maybe bacterial pathogens or fungal pathogens, and every pathogen requires moisture for its growth and development before infecting the host tissues. तो ये जो मॉइस्चर है ये कई प्रकार से in different ways it helps to the pathogen to grow and cause the disease. और अगर ये मॉइस्चर नहीं रहता या स्कैरसिटी अगर मॉइस्चर की होती है that adversely affected the growth and development of the pathogens as well as the disease development. तो ये जो मॉइस्चर है ये रेन्स के फॉर्म में, इरिगेशन वाटर के फॉर्म में, ड्यू फॉर्म में ऑन द प्लांट सरफेस, फिर होस्ट के चारों तरफ या रूट्स के रीजन में, या फिर जो माइक्रो क्लाइमेट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, इन सभी फॉर्म में ये जो मॉइस्चर है ये मौजूद रहता है। और it is very important and very necessary for the germination of fungal spores as well as the formation of germ tubes or infection packs or hyphae in the presence of moisture, जिसके वो पैथोजेंस या फंगल पैथोजेंस पेनिट्रेट करते हैं होस्ट को। और इसी तरह से इट इज आल्सो इंडिस्पेंसेबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरियल फंगल एंड नेमाटोड्स। इसके पहले कि वो इन्फेक्ट करें, जैसे बैक्टीरियल है पैथोजेंस हैं उनके लिए मॉइस्चर इसलिए जरूरी है कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बिफोर एंटरिंग इनसाइड द होस्ट टिश्यूज थ्रू द नेचुरल ओपनिंग और थ्रू द बोन्स। इसी तरह से फंगल पैथोजेंस में भी जो प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटीज हैं, स्पोर्स का जर्मिनेशन है, इन्फेक्शन पैक्स का बनना है, नेमाटोड्स के लिए भी जरूरी है फॉर द हैचिंग एंड फॉर द क्रॉलिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज लार्वी, जो इसको अब जुवेनाइल लार्वी बोलते हैं, उसके क्रॉलिंग के लिए, उसके मूवमेंट के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता है। और जब ये होंगे तभी वो पौधे को इन्फेक्ट करेंगे। देन मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेन स्प्लैशेस और रनिंग वाटर, they also play a very important role in the distribution and spread of many pathogens either on the same plants or on the other plants. Most of the bacterial pathogens they spread through the rain splashes. Rain splashes के माध्यम से वो पानी के जो छींटे होते हैं उनके माध्यम से वो एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचते हैं और वहां पे ये डिजीज काज करते हैं। और रेनी वाटर और इरिगेशन के माध्यम से इनके इनाकुलम एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो मॉइस्चर का जो रोल है वो पैथोजेंस के ऊपर है। इवन मॉइस्चर और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मॉइस्चर इट आल्सो हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द होस्ट ससेप्टेबिलिटी। होस्ट में जो सक्युलेंसी आती है, जो उनमें ससेप्टेबिलिटी है, वो इट इंक्रीजेस, द मॉइस्चर इंक्रीजेस द
ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, और जब होस्ट की ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है तो फिर उस पे डिजीज का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। इसी तरह से हम रेनफॉल का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रेनफॉल है, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एक्चुअली इट has greater impact on various types of diseases and their development. जब पानी गिरता है तो पानी गिरते समय या पानी गिरने के तुरंत बाद ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनका आउटब्रेक्स होता है, और वो इसीलिए होता है कि वो रेनफॉल जब होता है या पानी गिरता है तो पानी के माध्यम से इनका जो इनाकुलम है उसका स्प्रेड होता है। फिर जब रेन्स होती है तो टेम्परेचर डाउन होगा तो उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है पैथोजेंस का वो बढ़ेगा, और इस तरह से जो डिजीज है के लिए एक फेवरेबल कंजीनियल एटमॉस्फेयर होगा और जिसमें डिजीज बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। और वी कैन कोट द सेवरल एग्जांपल्स लाइक लेट ब्लाइट है पोटैटो का, एप्पल स्केब है, डाउनी मिल्ड्यू है, फायर ब्लाइट एप्पल का है, इवन राइस ब्लास्ट है, फिर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है। ये ऐसी डिजीजेज हैं जिनको हम जिनसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि रेनफॉल्स, जैसे एग्जांपल इसमें एप्पल स्कैब का दिया है कि अगर कंटिन्यूअस लीव्स वेट रहे और फ्रूट्स वेट रहे एटलीस्ट फॉर 9-10 आवर्स, तो उस कंडीशन पे जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है एप्पल स्कैब का वेंचुरिया इनिक्वेलिस के द्वारा, उसके लिए इसकी जरूरत होती है मॉइस्चर की फॉर द जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। तो ये जो मॉइस्चर है उसकी जरूरत होती है, और टेम्परेचर साथ साथ में, तो अगर 18 to 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है and if there is a continuous wetting of leaves for 9 hours, then certainly there is a chance of primary infection of this pathogen. और अगर टेम्परेचर, there is a very much correlation or very much close relation between temperature, humidity, rainfall. इसका एक उदाहरण है कि अगर लो टेम्परेचर है तो वेटिंग पीरियड ज्यादा चाहिए, अगर टेम्परेचर फेवरेबल है तो वेटिंग पीरियड कम चाहिए। इसी तरह से पाउडरी मिल्ड्यू का है, पाउडरी मिल्ड्यू का स्पोर जर्मिनेशन और इन्फेक्शन के लिए भी मॉइस्चर चाहिए जिसमें वो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। तो कई तरह से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, इसमें पैथोजेंस के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए, स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए देयर इज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉट ओनली अंडर फील्ड कंडीशन बट समटाइम्स आल्सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज में भी ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टोरेज से अगर हम शुरू करें तो इसमें देखा गया कि अगर ह्यूमिडिटी 85 से 90% मेंटेन करके रखा जाए तो उस कंडीशन पे जो कुछ डिजीज है जैसे सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो है वो डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर स्टोरेज टेम्परेचर अगर फेवरेबल है और ह्यूमिडिटी अगर वो 85-90% भी है तो भी वो देयर इज ए चांस ऑफ डेवलपिंग राइजोपस रॉट। तो उसको ये जरूरी है देखना कि ह्यूमिडिटी के साथ टेम्परेचर का रिलेशनशिप किस तरह का है, और इसके फंगल स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, और मोस्टली जितने भी प्रकार के स्पोर्स हैं उनके सबके लिए जो ह्यूमिडिटी है इट इज रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका पेनिट्रेशन, इनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है।
इसी उसमें हम बात करें कि सॉइल जब मॉइस्चर, अभी हम जितनी भी बात कर रहे थे, अभी हम जो अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट में जो मॉइस्चर का रोल है, जो एटमॉस्फेयर का रोल है, उस संबंध में बात कर रहे थे। अब इसी के साथ साथ जो सॉइल का मॉइस्चर है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Soil moisture influences the initiation and development of most of the soil-borne diseases which are of infectious in nature. तो इसमें जो soil moisture, high or low soil moisture है, that may be the limiting factor for the development of most of the soil-borne diseases, especially root rot diseases, or that varies with the types of the pathogen and with the nature of the pathogen. जैसे इसमें अगर फाइकोमाइसीड्स या उमाइसीड्स के जो प्लांट पैथोजेंस हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट, उनका जो रिप्रोडक्शन है, वो हाई सॉइल मॉइस्चर में ज्यादा होता है। जैसे पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, ये इनका जो डिजीज का डेवलपमेंट है, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो डिजीज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। और इसी तरह से सॉइल मॉइस्चर कभी कभी एडवर्स इफेक्ट भी डालती है। जैसे अगर कंटिन्यूअस सबमर्ज कंडीशन रहे तो उससे एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, एंड अंडर सच कंडीशन, अंडर एनारोबिक कंडीशन, इसमें जो प्लांट सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस हैं, वो उनमें उनका जो सर्वाइवल है उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और इसका एक एग्जांपल है कि पनामा विल्ट ऑफ बनाना, जो फ्यूजेरियम के द्वारा होता है, उसमें ये देखा गया कि अगर सबमर्ज कंडीशन मेंटेन कर दी जाए, जो फ्यूजेरियम की पॉपुलेशन है उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन होता है। तो इस तरह से सॉइल मॉइस्चर फेवर भी करता है, और सॉइल मॉइस्चर जो है कभी कभी कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी होता है। फिर ऐसे कई सारे डिजीजेस हैं जिनको लेस सॉइल मॉइस्चर चाहिए, जो कि लो सॉइल मॉइस्चर में जिनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, चाहे वो स्क्लेरोसियम राल्फसाई हो, जो कि कई सारे वाइड होस्ट रेंज है इसका पैथोजन का। इट causes the collar rot of chickpea, it causes the white rot of onion, it causes the stem rot of groundnut। तो कई सारे तरह के जो है वो स्क्लेरोसियम राल्फसाई या स्क्लेरोसियम की जो दूसरी स्पीसीज हैं, इस तरह से राजेक्टोनिया है, मैक्रोफोमिना फैसिलिना, जो सोयाबीन और सारगा में चारकोल रॉट काज करता है। राजेक्टोनिया सोलेनाई जो है वो जो शीथ ब्लाइट काज करता है, उसमें भी ये देखा गया है कि they are the most severe under low moisture, मतलब इसमें लेस मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए। और भी हम कई तरह के एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस का है, जो पोटैटो स्कैब है, ये भी लेस मॉइस्चर में ज्यादा होता है। तो जो सॉइल है, सॉइल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। और जो ये रेशियो है, जैसे सॉइल मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो एनारोबिक कंडीशन डेवलप होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उस कंडीशन पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है, उसमें जो पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे एग्जांपल है इसमें कि फाइटोप्थोरा की स्पीसीज जो है उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट चाहिए जूस फॉर प्रोडक्शन के लिए, और अगर ऑक्सीजन कम है तो पैथोजेंस में स्पोर का डेवलपमेंट नहीं होगा। पैथोजेंस, वो जो पैथोजन है फाइटोप्थोरा, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। तो इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अगर है, तो ये देखा गया कि जो राजेक्टोनिया सोलेनाई है उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है, उसकी ग्रोथ रुकती है। तो ये भी सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड है। इसके बाद जो विंड है उसका बहुत बड़ा रोल है।
विंड की वेलोसिटी, विंड का डायरेक्शन, which plays a very important role। और क्यों इसका इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में हम देख चुके हैं पहले, जब हमने डिस्पर्सल देखा कि जिसमें बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, जिसमें कि जो स्पोर्स हैं पैथोजन के, वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाते हैं। तो ये जो विंड है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की फ्लाइट्स को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के स्पोर्स हैं, कोनिडिया है, यूरोडोस्पोर्स हैं, पैथोजेंस के, जो किलोमीटर्स में हवा के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में डिस्पर्स होते हैं उस डायरेक्शन में डिजीज का डेवलपमेंट होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर रेन्स हो रही हो तो रेन्स के साथ जो एयर है या विंड है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर बैक्टीरियल डिजीज के स्प्रेड में। अगर वेलोसिटी एयर्स की ज्यादा है तो रेन स्प्लेसेस जो है उसको स्प्रेड करने में ये विंड वेलोसिटी मदद करती है, और ऐसी कंडीशन में डिजीज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। देन कम टू द लाइट। लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट either increase or decrease the susceptibility of plants to infection and also the severity of the disease। Mostly जो light है it reduces the activity of the plants, photosynthetic activity of the plants। तो जब photosynthetic activity plants की ये कम करता है लाइट, अगर कम है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसमें जो ससेप्टिबिलिटी है होस्ट प्लांट की वो बढ़ जाती है। सो द डिक्रीज और इंक्रीज इन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ऑब्लिक पैरासाइट्स इज बीइंग गवर्न्ड बाय द लाइट। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन कोट, बहुत सारे ऐसे ऐसी वायरस की डिजीजेज हैं जिसमें जहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की कम होती है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं और वहाँ पे डिजीजेज ज्यादा होती हैं। इसी तरह से हम लो इंटेंसिटी में कई सारे हम एग्जाम्पल्स का कोट कर सकते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ससेप्टेबल हो जाते हैं डिजीज के लिए ड्यू टू चेंज इन देयर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द होस्ट प्लांट, photosynthetic activity of the decrease in the photosynthetic activity of the host plant, as well as there is a change in the morphological features of the host plant। तो morphological features भी चेंज होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं कि जो टोमेटो प्लांट्स हैं ये इनको अगर कम लाइट में रखा जाए तो दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू बी अटैक्ड बाई सम ऑफ द पैथोजेंस लाइक फ्यूजेरियम विल्ट है या पाउडरी मिल्ड्यू है, इनका इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह से समटाइम्स जो लो इंटेंसिटी है इट आल्सो हैज गॉट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन the sporulation growth and the infection activities of the pathogens। तो एक तरफ तो ये पैथोजेंस की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और दूसरे तरफ ये होस्ट को ससेप्टेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं, और एज ए रिजल्ट देयर इज ए चांस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। फिर दूसरा हम रस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि रस्ट में जो स्पोरुलेशन है इट इंक्रीज अंडर लो लाइट इंटेंसिटी, और एज ए रिजल्ट स्पोरुलेशन जब होगा ज्यादा so there may be the higher rate of the inoculum production and which may help in the development of the disease।
लेकिन अगर उसके अपोजिट साइड में हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग लाइट है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड हमारा इंक्रीज होता है, इंक्यूबेशन पीरियड डिक्रीज होता है अंडर स्ट्रॉन्ग लाइट कंडीशन। इसी तरह से जो मैलाम-सोरालिनी है, उस रस्ट की सीवियरिटी बढ़ती है अगर ऑक्सीजन और इसका लाइट अगर इंक्रीज होती है, तो मैलाम-सोरालिनी की जो ससेप्टेबिलिटी है पौधे की मैलाम-सोरालिनी के अगेंस्ट में, वो बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसी कंडीशन पे रस्ट की इंसिडेंस रस्ट का बढ़ जाता है। फिर शेड का इफेक्ट जो है, दैट आल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन द डिजीज डेवलपमेंट। शेड में या तो जो प्लांट, जो पौधे हैं, उनकी जो कैनोपी है वो खुद भी डेवलप करती है एक तरह से, और उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्रैप कैनोपी, वो पर्टिकुलर क्रैप की जो कैनोपी है, एक तो वो स्वयं शेड का काम करती है, और ऐसे कंडीशन में डिजीज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। या कभी कभी क्रॉप जहाँ जिस फील्ड में लगाई जाती है, उसके आसपास जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, उनके शेड के अंदर भी जो डिजीज का डेवलपमेंट है वो कम ज्यादा हो जाता है। और इस पे ये देखा गया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कि अगर क्रॉप कैनोपी डेंस है पोटैटो की, और ड्यू टू हायर सीड रेट, और उसमें अगर हम फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन करते हैं वाटर का और न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे लेट ब्लाइट का जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ह्यूमिडिटी अंडर द डेंस क्रॉप कैनोपी। Shade is also provide congenial environment for the development and growth of the pathogens which are causing diseases. तो इसमें ये देखा गया कि जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जो स्लोप्ड मॉर्निंग शेड जो मिलता है पौधों के ऊपर, उसमें ये देखा गया कि लेट ब्लाइट और लीफ स्पॉट मेज में ये दो डिजीज जो आती हैं, उसमें हेलमिंथोस्पोरियम के कारण जो लीफ स्पॉट आता है, और हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट और हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट, दोनों में हेलमिंथोस्पोरियम ही डिजीज काज करता है। और इसमें देखा गया कि ये जहाँ पे शेड सन शेड होता है जहाँ पे, वहाँ पे डिजीज का डेवलपमेंट ज्यादा देखा गया। दूसरा, ट्री कैनोपी के चारों तरफ जो धान के पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पे मेढ़ों पे चाहे वो बबूल के पेड़ हो, चाहे दूसरे फ्रूट ट्रीज हो, जहाँ पे भी लगे रहते हैं, उसकी जो छाया है, उसके नीचे जो राइस क्रॉप होती है, उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होता है। और उसपे ये देखा गया कि उसकी जो हाइट है, उन पौधों की जो शेड में रहते हैं वो बड़ी रहती है, टिलर्स कम हो जाते हैं, और उसमें ग्रीननेस ज्यादा आती है। So those conditions make susceptible to the host plant. Then we can also talk about the soil pH. Soil pH, as the neutral pH is the requirement for the better growth of the plants. It is also required for the favorable growth and development of the plant pathogens under neutral condition. तो जो soil pH है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी, ये दोनों तरह से प्रभावित करता है। एक तो इट आल्सो अफेक्ट्स द प्लांट एंड इट मेक्स द प्लांट समटाइम्स मोर ससेप्टेबल टू द प्लांट पैथोजेंस और टू द डिजीजेस। और दूसरा, ये भी देखा गया कि ये जो सॉइल पीएच है, इट आल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजेंस। अब इसमें एग्जाम्पल में हम पोटैटो स्कैब का ले सकते हैं कि अगर पीएच लो है 5.2 और उससे भी लो है, तो जो डिजीज है पोटैटो स्कैब वो कम होती है।
लेकिन जैसे ही pH 5.2 से ऊपर जाता है, एल्कलिनिटी की तरफ जाता है 5.2 to 8.0 और अबव, तो इसमें जो इसका जो डिजीज है इट बिकम सीवियर। दूसरा उदाहरण क्लबराट आप क्रूसीफर का ले सकते हैं, जो प्लाज्मोडियम फोरा ब्रेसिसिस होता है। तो इसमें ये देखा गया कि जो 5.7 pH है वो डिजीज के लिए मोस्ट फेवरेबल, लेकिन जैसे ही pH थोड़ा इंक्रीज होता है 5.7 और 6.2 के आसपास पहुंचता है, तो उस कंडीशन पे इसमें जो डिजीज है इसके सिवियरिटी में कमी आती है। और एल्कलिनिटी की तरफ जैसे ही वो pH जाता है 7.8 के आसपास जब जाता है तो डिजीज का डेवलपमेंट रुक जाता है। सो द pH, soil pH has greater impact on the disease development और the pathogenesis। और इसी तरह से एसिडिक सॉइल में जनरली देखा गया है कि कॉटन विल्ट ज्यादा आता है, टोमेटो विल्ट ज्यादा आता है, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो और स्क्लेरोसियम डिजीजेस जो हैं ये सभी एसिडिक तरह की जो सॉइल है उस पे ज्यादा आती है। इसके बाद जो सॉइल टाइप्स हैं, सॉइल टाइप्स में भी अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग प्रकार की सॉइल जो है वो फेवरेबल होती है या अनफेवरेबल होती है। तो सॉइल टाइप इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ द पैथोजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल नेमेटोड्स मोस्टली जो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में नेमेटोड्स का अटैक ज्यादा होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, जो लाइट टेक्सचर होती है जिसमें नेमेटोड्स ज्यादा अटैक करते हैं। और इसी तरह से जो फ्यूजेरियम विल्ट है वो लाइटर और हायर दोनों तरह के सॉइल में फ्यूजेरियम विल्ट का ज्यादा देखा गया। कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो लोमी सॉइल्स में और क्लेई सॉइल्स में ज्यादा जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और ज्यादा जो दिखाई देते हैं। तो फिर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स के सिम्टम्स काज करते हैं, चाहे वो ओजोन की इंजरी हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो। ऐसे बहुत सारे देखा गया कि जो ओजोन है वो रस्ट के जो स्पोर्स हैं, इरिडोस्पोर्स हैं, और उसका जो हाइफल डेवलपमेंट है वो उसके प्रोडक्शन को, इरिडोस्पोर्स के प्रोडक्शन को, जो ओजोन इंजरी, जो इंजर्ड लीव्स हैं उसके कारण इसके जो ग्रोथ है इरिडोस्पोर्स की वो कम हो जाती है। ओजोन इट आल्सो इंक्रीजेस द इन्फेक्शन ऑफ पोटैटो लीव्स बाय बोट्राइटिस, जो इंजरी काज करता है उससे बोट्राइटिस का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। देन द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मोस्टली high accumulation of carbon dioxide, it inhibits the germ tubes formation of the pathogens, or oxygens favor the growth and development of the pathogen। तो ये तो environmental factors के बारे में हो गया। Then come to the effect of host plant nutrition। host plant में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन हम होस्ट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट हो, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, दे आल्सो हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन मेकिंग होस्ट प्लांट आइदर susceptible or making host plant to somewhat resistant against the plant pathogens and their development। तो किस तरह से ये जो न्यूट्रिशन है वो इसको प्रभावित करता है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन जो है इट अफेक्ट्स द रेट, ग्रोथ रेट एंड स्टेट ऑफ द रेडीनेस ऑफ द प्लांट्स टू डिफेंड देम अगेंस्ट द पैथोजन अटैक। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अगर ज्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन एबंडेंस, अगर एबंडेंस नाइट्रोजन है तो उसके कारण जो ग्रोथ रेट है
क्रॉप की वो बढ़ जाती है। पर्टिकुलर अगर राइस में देखें तो जैसे ही हम नाइट्रोजन देते हैं तो राइस में जो न्यू लीव्स हैं वो आनी शुरू होती हैं। सो देयर इज अ मोर प्रोडक्शन ऑफ यंग एंड सकुलेंट प्लांट पार्ट्स और प्रोलॉन्ग वेजिटेटिव पीरियड which also delayed the maturity of the plants, और इस कंडीशन पे it also makes the plants more susceptible. So these effects make the plant more susceptible to pathogen, और ये देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी राइस में खासकर देखा गया कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है, अगर हम हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है या ब्लास्ट की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ इसके विपरीत ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और उस कमी के कारण जो पौधे वीक हो जाते हैं and the plants become weak and slow growing, and those also become susceptible to the attack by the plant pathogens. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखा गया कि राइस में अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो उस कंडीशन पे जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज है which is caused by Helminthosporium oryzae, it occurs in a high intensity where the plants are weak or where the plants are less fertilized, जहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन कम होता है। तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है और लो एंड हाई क्वांटिटी नाइट्रोजन की उसके लिए कई सारे एग्जांपल्स हैं। लो नाइट्रोजन में टोमेटो विल्ट, फ्यूजेरियम बैक्टीरियल विल्ट जो है वो उस पे ज्यादा आती है जब नाइट्रोजन जो है वो कम जहाँ पे रहती, और वर्टिसियम विल्ट ऑफ कॉटन इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय द नाइट्रोजन एप्लीकेशन। इसमें भी देखा गया। तो मोस्टली जो विल्ट की डिजीजेज हैं वो नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है वहां पे ज्यादा दिखाई देती, और नाइट्रोजन पीएच को भी चेंज करता है। तो जब पीएच चेंज होता है तो उसमें जो अमोनिकल फॉर्म्स है नाइट्रोजन की वो पीएच को कवर करती हैं, जबकि नाइट्रेट और जो नाइट्रोजन है वो पीएच को बढ़ाने का काम करता है। So nitrate nitrogen suppress the damping off of sugar beet, which is caused by PTM. और इसी तरह से ये देखा गया है कि जो अमोनिया है it is known to be toxic to the Sclerotium rholopsi, और इसी तरह से जो नाइट्रोजन का नेमाटोड्स में रोल देखा गया कि इसमें ये देखा गया कि जो माइकोराइजी है उसमें भी नाइट्रोजन का रोल देखा गया। तो इस तरह से देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के अलावा पोटास का बहुत बड़ा रोल है। एंड it has been established by the different studies and by the different facts that the high level of the potash is known to reduce the incidence of the disease. और इसमें there is a recommendation of the additional application of the potash fertilizer in rice to suppress the bacterial blight of rice. Bacterial blight of rice को suppress करने के लिए recommendation है there should be additional application of potash in rice field at the rate 10 kg per acre. तो apart of that ऐसे और भी जो diseases हैं जैसे rust of wheat है या ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है या स्टेम रॉट ऑफ राइस है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ टोबैको है, इस सभी में देखा गया कि जो पैथोजेनेसिस है या जो डिजीज डेवलपमेंट है वो सप्रेस होता है अगर पोटास का लेवल ज्यादा है। कैल्शियम इज अनदर न्यूट्रिएंट which also provides the resistance to the host cell wall and making host more resistant, and which is not being degraded by the facultative parasite or pathogens like Rhizoctonia solani or Sclerotium rholopsi or Fusarium oxysporum। तो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है
होस्ट सेल वॉल में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम it makes the plant resistant to be attacked by these pathogens. Calcium also favors the growth of the pathogens. तो इसमें ये भी है कि दूसरी तरफ जो कैल्शियम है ये कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनको फेवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्कैबिस जो पोटैटो स्कैब डिजीज काज करता है, उसमें देखा गया कैल्शियम इसको फेवर करता है. देन सम ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट they also influence the pathogenesis, like बोरान है, मैग्नीशियम है, जिंक है. ये देखा गया है कि ये जो सेप्रोफिटिक सर्वाइवल है फ्यूजेरियम का, उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस तरह से जो सिट्रस की ससेप्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में, ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज करने में देखा गया कि जहां पे जिंक की डेफिशिएंसी है या कॉपर की जहां पे जिंक की डेफिशिएंसी है कॉपर की, या जहां पे एक्सेस है कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम या पोटेशियम, उन सिट्रस प्लांट में ससेप्टेबिलिटी ज्यादा देखी गई और टाइलेंकुलस निमेटोड के अगेंस्ट में. तो देन नाइट्रोजन में का कुछ और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि नाइट्रोजन इंक्रीजेज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पियर टू फायर ब्लाइट, व्हीट रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू. ये नाइट्रोजन की ससेप्टेबिलिटी में और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. देन रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ टोमेटो टू फ्यूजेरियम विल्ट, अल्टरनेरिया. दिस ऑल वी डिस्कस अर्लियर. और कुछ नए जो एग्जाम्पल हैं वो हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे जो डिजीजेज हैं फ्यूजेरियम से, प्लाज्मोडियोफोरा से, स्क्लेरोसियम से, जो डिजीजेज हैं जो होती हैं वो हमेशा इंक्रीज होती हैं अगर हम अमोनियम फर्टिलाइजर क्रॉप्स को दे रहे हैं. और उसी तरह से ये देखा गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो पोटैटो स्कैब है, या जो गैम्नोमाइसिस ग्रैमनिस है, जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में जब फर्टिलाइजर्स देते हैं तो ये डिजीज इंक्रीज करते हैं. फास्फोरस को देखा गया कि ये पोटैटो स्कैब की सीवियरिटी रिड्यूस करता है. और इसी तरह से ये भी देखा गया कि जो वायरस है, मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, उसकी जो सीवियरिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है फास्फोरस. तो एक तरफ ये स्कैब को रिड्यूस करता है, दूसरी तरफ मोज़ेक को बढ़ाने का काम करता है. तो इसमें ये भी देखा गया कि फास्फोरस जो है इट सीम्स टू बी इंक्रीज द रेजिस्टेंस either by improving the balance of nutrients in the plants or by accelerating the maturity of the crop, allowing it to escape infection by the pathogens that perfect younger tissues. तो जो पैथोजेंस यंगर टिश्यूज प्रेफर करते हैं, सो व्हाट इट डज फास्फोरस, ये मैच्योरिटी एक्सेलरेट करता है. जो मैच्योरिटी एक्सेलरेट होगी तो जो टिश्यूज हैं वो ओल्ड होंगे, और जब ओल्ड होंगे तो जो पैथोजेंस हैं वो उस पर अटैक नहीं करेंगे. तो इसी तरह से वो पोटेशियम के बारे में हम पढ़ चुके कि इवन ये भी देखा गया कि समटाइम्स हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम इट आल्सो इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिफरेंट डिजीजेज. जैसे राइस ब्लास्ट में सिवियरिटी बढ़ी देखी गई, रूट नॉट में बढ़ी देखी गई, और पोटेशियम का डायरेक्ट इफेक्ट पैथोजेंस के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी देखा गया. और इसमें कैल्शियम को भी देखा गया कि ये जो कई सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जैसे राइटोनेस, स्क्लेरोसियम है, बोट्राटिस है, फ्यूजेरियम है, इसमें इनकी सीवियरिटी को ये रिड्यूस करने का काम करता है. और ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि जो इस तरह से जो इन जनरल प्लांट्स रिसीविंग अ बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, और उनमें जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम होती है अगर हम
पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन अगर दे रहे हैं, तो इस तरह से दिस ऑल अबाउट the factors which are responsible for influencing the disease development.